السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کو گولڈ میڈل جتوانے والے جیویلین تھرو ارشد ندیم کے والد کا کہنا ہے کہ وہ گاؤں میں بھٹے پر اینٹیں بناتے تھے۔ ارشد ندیم کی تاریخی فتح کے بعد حکومتی اور ملک بھر کی معروف شخصیات کی جانب سے قومی ہیرو کے لیے انعامات و تحائف کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں ارشد ندیم کو دیے گئے ایک تحفے کو وصول کرتے ہوئے ان کے والد ایک بار پھر جذباتی ہو گئے، جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کے 3 اراکین قومی اسمبلی کی دوبارہ گنتی کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں بحال کر دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے قومی اسمبلی کے حلقوں NA 154، NA 81 اور NA 79 کے مختلف پولنگ سٹیشنز میں دوبارہ گنتی کی درخواستوں پر سماعت کی۔ ملک بھر کی طرح سلہ والی میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ بچے بڑے سبھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار آزادی کا جشن منانے کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل بتائیں گے ڈاکٹر ندیم شہزاد۔ جی ندیم، بتائیے گا کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح سلہ والی میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں بام عروج پر ہیں۔ چھوٹے بڑے سبھی جذبہ حب الوطنی کے ساتھ جشن آزادی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ شہر بھر میں سب ہلالی پرچموں کی بہار آ چکی ہے، جگہ جگہ سٹال لگ رہے ہیں جن پر مختلف اقسام کی اشیاء جیسے جھنڈے، جھنڈیاں، چوڑیاں، بیجز، باجے اور اسی طرح قومی پرچم کی سٹائل کے کپڑے بھی دستیاب ہیں، جو کہ بچے بڑے شوق سے خرید رہے ہیں۔ مہنگائی کے باوجود بھی لوگوں کا جوش و جذبہ دیدنی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جی الحمدللہ، مہنگائی تو بہت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مہنگائی ہمارے جذبات کو کم نہیں کر سکتی۔ ہم پورے جوش و خروش کے ساتھ جشن آزادی منائیں گے، منا رہے ہیں اور انشاءاللہ منائیں گے۔ ہم اس ملک کی ان مشکلات کے اس دور میں ہم ملک کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہمارے جیسے کہ دیکھا آپ نے، شہری کا کہنا تھا کہ ہم مہنگائی کے باوجود بھی جشن آزادی جوش و جذبے سے منائیں گے اور ہماری محبتیں، ہمارا سب کچھ ملک کے ساتھ ہے۔ جی اگر انسان دل و جان سے سچے ارادوں سے جذبے سے محنت کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول منڈی عثمان والا نے 7 سالوں سے مسلسل اپنی روایات کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اسکول کا ہونہار طالب علم حافظ محمد عثمان ایک ایسا محنتی طالب علم ہے جو نہ صرف قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے بلکہ اپنے والدین کے ساتھ کھیتی باڑی میں بھی ان کی پوری مدد کرتا ہے۔ حافظ محمد عثمان نے 9ویں کلاس میں 555 نمبروں میں 547 نمبر لے کر ضلع قصور کے سرکاری اسکولوں میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ صادق آباد میں 8 سالہ محمد شہباز کو گھر جاتے ہوئے آوارہ کتوں نے چیر پھاڑ دیا۔ والدین غم سے نڈال ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اس علاقے کا تیسرا واقعہ ہے۔ انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس واقعے کا نوٹس لیں۔ جہلم پریس کلب الیکشن 2024 صدر مہر محمد الیاس، جنرل سیکرٹری الیاس صادق بٹو منتخب اور سیکرٹری انفارمیشن ڈاکٹر اعجاز اوان ہوں گے۔ جہلم پریس کلب کا سالانہ فل ہاؤس اجلاس بسلسلہ الیکشن منعقد ہوا، جس میں صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت نگراں صدر پریس کلب محمد امجد بٹ نے کی۔ اجلاس کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے ہوئی، جس کی تلاوت سینئر صحافی عاطف بٹ نے کی۔ جہلم میں پولیس کی بڑی کارروائی، تھانہ سول لائنز پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے 3 عدد چوری شدہ موٹر سائیکلز بھی برآمد کر لیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلانے عدالت کیا جائے گا اور سزا بھی دلوائی جائے گی۔ شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثوں سے محروم کرنے والے ملزمان کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ چونیا میں بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑے، متعدد افراد زخمی، ایک خاتون کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ مقامی میلے میں بچوں میں تکرار ہوئی، پھر بڑوں نے ایک دوسرے پر لاٹھیاں چلا دی۔ مین قصور دیپال پور روڈ ہر طرف سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والی خاتون کو چارپائی پر ڈال کر روڈ پر رکھ دیا اور ٹائر جلا کر ٹریفک بند کر دی گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، DPO قصور خود آئے، انصاف دے، پھر ٹریفک بحال کریں گے۔ چنیوٹ میں خطرناک پولیس مقابلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے ناکہ بندی کے دوران موٹر سائیکل سواروں کو روکا، جنہیں دیکھتے ہی نامعلوم 2 ملزمان نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے بھی حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی کارروائی کی۔ ایک ملزم ساتھی فائرنگ سے زخمی ہوا، جس کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دوسرا فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ گرفتار ملزم کاشف جاوید ڈکیتی، رازنی چوری، موٹر سائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں سابقہ ریکارڈ یافتہ نکلا۔ حویلی لکھا میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے قبضے سے 22 لاکھ روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا، جس میں 22 موٹر سائیکل اور مسروقہ شدہ ٹرانسفارمرز کا سامان شامل ہیں۔
गिरफ्तार मुलजिमान अरसा 2 साल से इश्तिहारी भी थे, जो गुज़िश्ता दिनों से हवेली लखा के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में सरगर्म थे। DPO काड़ा तारिक अजीज संधू ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और तारीफी सर्टिफिकेट से भी नवाजा। अहमदपुर सियाल में सदर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब हमद कमेटी पंजाब और तहसील स्पोर्ट्स सदर मलिक गुलाम जिलानी आठी ने पंजाब एलीट पुलिस फोर्स जंग ऑफिस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम की रिपोर्ट पे। ज़िले सदर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब और तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने इलीट पुलिस फोर्स ऑफिस जंग में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने DSP हेडक्वार्टर जंग ज़हूर अहमद, DSP सिटी जंग चौधरी गजनफर गुज्जर और इंचार्ज इलीट पुलिस फोर्स जंग उजैरुल्लाह के हमरा इलीट पुलिस फोर्स ऑफिस जंग के सब्जाजार में पौधा लगाया और आबियारी की। इस मौका पर इलीट पुलिस फोर्स का दीगर अमला भी मौजूद था। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि पौधे जमीन का जेवर हैं, जो माहौल को आलूदगी से पाक रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी को सरसब्ज़ो शादाब पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए अपने हिस्से का एक पौधा लगाना होगा। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। शकरगढ़ में रेलवे ट्रैक की बहाली कई दिहाइयों से किसी मसीहा के मुंतजिर है। रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। मजीद तफसील बताएंगे हसन शेख, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शकरगढ़ नरवल के तरीखी रेलवे ट्रैक पर, जो कि अरसाए दराज से हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। इस रेलवे ट्रैक के तमाम तर जो रेलवे स्टेशन है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि ये रेलवे ट्रैक दफाई नुक्ते नज़र और कारोबारी नुक्ते नज़र के लिहाज से भी काफ़ी अहमियत का आमिल था। लेकिन सियासतदानों की अदम दिलचस्पी के बायस इस रेलवे ट्रैक के तमाम तर जो रेलवे स्टेशन है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रहे हैं और बाकायदा यहाँ पर लोगों ने अपने मवेशी बांध रखे हैं और यहाँ पर अब खेती बाड़ी की जाती है। तो बात करने के लिए यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं। इनसे भी बात करते हैं कि इनका हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा है। हाँ जी जनाब, 25 साल तो रेलवे बंद है। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100 रुपया किराया जान, 100 रुपया आना, ये कोई असूल की बात है? लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज़ पर कोई तवज्जो नहीं देती। MPA MNA मार लेते हैं, वो खा जाते हैं। हम क्या करें, गरीब लोग? जी यहाँ पर कुछ और भी शहरी हैं जो इलाका मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं और ट्रेन की एक झलक देखने को तरस चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों से हम बात करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी, बहुत मजबूर है दुनिया, जितनी भी इस इलाके की दुनिया ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ 100 रुपया शकरगढ़ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। आपने इलाका मकीनों की बात सुनी, तो जबकि मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ तो नारवल से लेकर चकमरू तक जो रेलवे ट्रैक बंद हुए उनमें जस्सर, करतारपुर, नूरकोट, अमरियाल, शकरगढ़ और चकमरू शामिल हैं। जो सियासी नुमाइंदे हैं उनकी अदम दिलचस्पी के बायस ये रेलवे ट्रैक अरसाए 2 दहाइयों से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी हालत ज़ार के बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ तो इसकी जो हालत ज़ार है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो टूट चुके हैं, इसकी जो इमारतें हैं वो भी टूट चुकी हैं। ये इमारत आप देख सकते हैं जो किसी भी वक्त गिरकर बड़ा सानिया रोनमा हो सकता है और यहाँ के जो दीवारें भी टूट चुकी हैं, इसकी बुनियादें मुकम्मल तौर पर हिल चुकी हैं। वो बाकायदा ये अब एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। तो इसके अलावा भी मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी अदम दिलचस्पी के बायस इस रेलवे ट्रैक की बहाली मुमकिन ना हो सकी। जो शकरगढ़ तहसील के 10 लाख से ज़्यादा लोग हैं वो भेड़ बकरियों की तरह बसों पर सफ़र करने पर मजबूर हैं और अगर ये रेलवे ट्रैक को बहाल किया जाए तो तहसील शकरगढ़ के जो लोग हैं वो भी इस जदीद और सस्ती सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी 14 अगस्त जश्न आज़ादी का दिन मनाने के लिए ज़िला कसूर के इलाकों छांगा मांगा, चूनिया, पतो की, कोट राधा किशन, कंगनपुर, इलाहाबाद, फूल नगर के शहरियों में भी काफ़ी जोशो जज्बा देखने को मिल रहा है।
चंगा मंगा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। पूरे शहर में हर तरफ सब्ज हिलाली परचम दिखाई दे रहे हैं। रंग बिरंगे झंडियां और बैजिस के स्टॉल्स भी सज चुके हैं। छोटे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना था, आइए देखते हैं असलम बाबर अंसारी की रिपोर्ट में। 14 अगस्त के हवाले से अगर बताया जाए तो पिछली मरतबा की निस्बत महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है कि आवाम भरपूर तरीके से ख़रीदारी कर रही है, डबल कीमत पर कर रही है। इसलिए कर रही है कि 14 अगस्त के आज़ादी के हवाले से लोगों का जज्बा बहुत ही भरपूर है और काफ़ी अच्छे तरीके से सेल हो रही है। हमारी कारोबार बेहतरीन चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है। लेकिन रेट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, लोग भरपूर ख़रीदारी। पाकपतन में आज़ादी फेस्टिवल के दौरान तलबात के दरमियान पिंक गेम्स के मुकाबला जात हुए, जबकि पाकिस्तान आर्मी और वापडा की टीमों के दरमियान कबड्डी का दिलचस्प मैच भी खेला गया, जिससे शायकीन खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। मज़ीद तफसील देखते हैं तारिक महमूद कंबो की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के जश्न को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए आज़ादी फेस्टिवल के तहत खेलों और तकरीबात के मुकाबलाजात जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने अरकान असम्बली के हमरा गवर्नमेंट गर्ल कॉलेज में पिंक गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। ये हमारी वज़ीर आला का एक इंतहाई अच्छा कदम है, जो बच्चे बच्चियों में उन्होंने एक हेल्दी एक्टिविटी को रीजनरेट करते हुए उनके लिए ये फैसिलिटीज़ और ये फेस्टिवल्स रखे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे असातिज़ा इकराम और खुसूसन हमारे ज़िला पाकपतन की बच्चियों को और उनके ट्रेनर्स को और उन अदारों के सरबराहान को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जश्न आज़ादी फेस्टिवल के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पाकपतन और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन आरफवाला के दरमियान कंपटिशन्स करवाए गए हैं। तो ये CM साहिबा के विजन के अकॉर्डिंगली पिंक गेम्स और जश्न आज़ादी फेस्टिवल को मिला के इस तकरीब का इनकाद किया गया। आज़ादी फेस्टिवल के दौरान कबूला में भी खेलों के मुकाबलाजात के दौरान पाकिस्तान आर्मी और वापडा की टीमों के दरमियान कबड्डी का दिलचस्प मैच खेला गया। मुमताज समाजी शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल जट ने फातिहा टीम को ट्रॉफी और इनामात दिए। कैमरा टीम के साथ तारिक महमूद कंबो, स्पेशल TV पाकपतन। बिजली के खंभे पर काम करने के दौरान जाँ बहक होने वाले वापडा के आर्जी मुलाजिम निसार अली के वरुसा की जानिब से दरगाह मोहम्मद अली शाह के करीब धरना दिया गया। वरुसा की जानिब से हैस्को वापडा के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। धरने के बायस ठट्टा कराची में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदो रफ्त मुअत्तल हो गई। वरुसा ने कहा कि वापडा की नाअहली की वजह से निसार अली जाँ बहक हुआ है, जो 4 मासूम बच्चों का वाहिद सहारा था। हैस्को हमें इंसाफ दे। बिलावल भुट्टो जियाला फेडरेशन के सूबाई सेक्रेटरी इतलात रज़ाक सलीम ने इंसाफ और कम्युनिटी की खिदमत के अज़म का सबूत देते हुए मीरपुर खास में किवल कोहली की गुमशुदगी पर फौरी कार्रवाई की और हिंदू बरादरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेने के बाद सूबाई सेक्रेटरी इतलात ने शफाफ तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी, जिसने मुनसिफाना रिपोर्ट पेश की। इसके बाद वो ज़ाती तौर पर दोनों बरादरियों तक पहुँचे और इस मसले को हल करने के लिए कोहली ख़ानदान के घर भी गए, जिससे हिंदू बरादरी को राहत भी मिली। सूबाई सदर सिंध सरदार अली खान लगारी और दीगर ने आवाम की खिदमत के जज्बे को सराहा और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक़लियती बरादरी को बाइख्तियार बनाने, इनके आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और कानून साजी के तहफ़्फ़ुज़ात को फ़रोग़ देने की एक तवील तारीख़ है। ठट्टा शहर में मोटरसाइकिल चोर शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। CCTV फुटेज स्पेशल TV को मौसूल हो गई, जिसमें चोर को मोटरसाइकिल ले जाते हुए देखा जा सकता है। चोर ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुल्क भर की तरह जुड्डो में भी 77वीं जश्न आज़ादी के सिलसिले में तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर में चारों तरफ सब्ज हिलाली और परचमों की बहार नजर आ रही है। शहरियों ने अपने घरों और दुकानों पर कौमी परचम और झंडियां लगाकर घरों और दुकानों को सजाने का आगाज कर दिया है, जबकि शहरियों की एक बड़ी तादाद ने अपनी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिए हैं। कराची के इलाके थाना जमान टाउन में पेट्रोल पंप पर खुलेआम पेट्रोल की हेरा फेरी जारी है। मशीनों में 2 नंबर सेटिंग करके आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मज़ीद तफसील बताएंगे आसिफ नवाज, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा वहाँ पर क्या सूरत हाल है और आम आवाम का क्या कहना है? ये देखिए नाज़रीन, यहाँ चाइल्ड लेबर की भी वायलेशन हो रही है। सैलरी क्या है आपकी? मेरी NIC है। मेरी NIC कहाँ है? दिखाओ। आज टीम आई है और ये देखिए नाज़रीन, किस कदर भला होशियारी से जो सेटिंग्स इन्होंने फिक्स कर रखी होती हैं अपने पेट्रोल पंप्स पे, उसको आज मनफी कर दिया गया है। और जितने ख़रीदार आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आज हम पेट्रोल ले रहे हैं तो सही जो है मिकदार उसकी मुकम्मल हमें मिल रही है। इससे पहले मिकदार मुयसर नहीं थी, जब भी आते थे 2 इंच 3 इंच साइज़ में कम होता था, आज ये कंप्लीट दिया जा रहा है।
क्योंकि आज मीडिया की टीम का अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर छापा एक तरह का पड़ गया है और ये लोग मोहतात हो गए हैं और होशियार हो गए हैं और बहुत एहतियात के साथ जो है पूरी मिकदार पेट्रोल की लोगों को दे रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये चाइल्ड लेबर की भी वायलेशन हो रही है। ये बच्चा, इसका NIC नहीं है। यहाँ पर अभी आपकी सैलरी क्या है बेटा? 15,000। 15,000 सैलरी इसको दी जा रही है, जबकि गवर्नमेंट का मुकर्रर करदा जो पैकेज है उसके मुताबिक भी 36,000 मिनिमम एक हेल्पर को भी दिया जाना चाहिए। मगर इस बच्चे को यहाँ 15,000 चाइल्ड लेबर है, इसका NIC भी नहीं है और 15,000 रुपये इसको सैलरी दी जा रही है माहाना। और ड्यूटी इससे 12 घंटे की ड्यूटी कितनी ली जा रही है? ड्यूटी कब से कब तक है तुम्हारी? 24 घंटे। 24 घंटे ड्यूटी का 15,000 रुपये इसको तनख्वाह दी जा रही है, जबकि 8 घंटे की ड्यूटी है। ड्यूटी कार्ड भी इसके पास मौजूद नहीं है और इसकी कोई जो यूनिफॉर्म होता है यूनिफॉर्म भी नहीं है। और प्लस ये अंडर एज बच्चा है, चाइल्ड लेबर की भी वायलेशन यहाँ हो रही है। आप देख सकते हैं नाजरीन, चाइल्ड लेबर की भी वायलेशन हो रही है और कोई सेफ्टी, कोई बच्चे के पास जॉब सर्विस कार्ड नहीं मौजूद और 24 आवर्स की जॉब ली जा रही है और 15,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। ये आपको बच्चे के बाकौल हमने मुंह से सुना दिया। आप देख सकते हैं कि इस कदर वायलेशन यहाँ पर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में सबसे बड़े शहर कराची, जो कि इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ का ये आलम है। तो बाकी तमाम जो छोटे मोटे इलाके हैं जिन पे मीडिया भी कम कवरेज करता है, जहाँ इतना इनको महसूस नहीं होता ख़तरा कि यहाँ पर, तो वहाँ तो फिर आप खुद देखिए, वहाँ तो 10,000 या 8,000 सैलरी दी जाती होगी बच्चों को 24 घंटे की। ये जबरी मुशक्क़त वाला सीन है यहाँ पर और ये कब तक हमारे मुल्क में चलेगा, ये नाइंसाफ़ी का आलम, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।